नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन उन पर केस चलता रहेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, लेकिन मुकदमा खारिज नहीं हुआ। इस कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल पर मुकदमा चलता रहेगा। तो 3 जजों की बेंच अब मामले में सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने 3 जज को नियुक्त किया है इन मामले की सुनवाई करने। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। The CBI bail is still pending, so until or unless he was granted bail in that, he will remain in custody till that time. This is a victory. This is a great judgment, and it is a very historical judgment. No, the court basically observed that insofar as his arrest is concerned, there are certain aspects on necessity of arrest, whether it was necessary or not, legal aspects, which have to be examined by a larger bench. So they have not finally pronounced on that. But they said Mr. Kejriwal has undergone a large period of incarceration already. He has stayed in jail and therefore directed his release on bail immediately in the Enforcement Directorate matter. So therefore the question is, ED arrest under the Prevention of Money Laundering Act, that is PMLA. There is a section 19 which has a certain threshold of arrest, which is like you have to have a prima facie, you have to have a view that the person is prima facie guilty. Now in addition to that, is there a requirement of a necessity of arrest, which is a classical, under classical criminal law, that is a requirement. Does that also superimpose itself on the section 19 requirements, is a question that the court has referred to a larger bench, which a larger bench will decide. No, so in the ED matter, he's been released now. But as you are aware, after the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. So now in the CBI matter, although the allegations effectively overlap in both of them, because in fact the ED argued the CBI's case also. But nevertheless, technically there is a separate case which exists. That also bail petition has already been moved in the High Court. And that bail we should, its hearing is on 17th of this month. And that is not a merits bail. It's a standard bail. Unlike section 45 PML, there is no requirement of assessing the matter on merits and then only rejecting or accepting a bail. So we'll see what happens in that. But after this, we are quite optimistic that since that is not a merits bail, he should even in the CBI matter get relief very soon. तो वहीं केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के मामले को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा आतिशी सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और एक बार नहीं बार बार कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है। ये कोर्ट के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा
और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए, और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े। तो वहीं केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है, और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। अगर दिल्ली की जनता की जेब में डाका डालना, दिल्ली की जनता को लूटना, अगर ये आम आदमी पार्टी की जीत है तो वो जीत मनाए। पुनः आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी प्रेयर थी कि आप मेरी अरेस्ट को अवैध डिक्लेयर करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी है, बल्कि इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रिफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सील ऑफ अप्रूवल लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं, और इसीलिए ये भी कहा कि सेक्शन 19 पीएमएलए की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, इसीलिए आईओ उनको अरेस्ट कर सकते थे। ये जो इंटरिम बेल मिली है, ये बस इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को भेजा गया है। लार्जर बेंच की सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ये देखिए जो कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी। यानी ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं अनलेस वो फाइल उनको एलजी ऑफिस में फॉरवर्ड करनी है। तो पुनः कहूंगी कि ये गुमराह करने की बात है। आज कोई राहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। हाँ, एक इशारा जरूर मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, वो ये कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यानी जैसे केजरीवाल जी हो गए, वो एक अभियुक्त के तौर पर एक स्कैम में लिप्त होते हैं तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। पर क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो सत्ता के मुंह में मदमस्त है और दिल्ली की जनता उनकी इस जिद के कारण त्रस्त है। इंटरिम बेल कोई किसी जो किए हुए क्राइम से राहत नहीं होती है। इंटरिम बेल होती है कि जब तक केस चल रहा है वो जेल से बाहर रह सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी इंटरिम बेल का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल जी ने घोटाला नहीं किया है, वो स्कैम में नहीं है। तो इंटरिम बेल अपने आप में क्वेश्चन खड़ा कर रही है कि हाँ दोषी है, लेकिन क्योंकि दिल्ली की जनता भुगत रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस बात को मानते हुए उन्हें बाहर रहकर अपना काम करने की इजाजत दी है, लेकिन उन्हें स्कैम के घोटाले से मुक्त नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है, परंतु कोई मुकदमा खारिज नहीं हुआ। मुकदमा उनके खिलाफ चलेगा, भ्रष्टाचार का मामला उनके खिलाफ है। ईडी और सीबीआई के पास सबूत है और सबूतों के आधार पर मुकदमा चलेगा। ये माननीय न्यायालय का निर्णय है। माननीय न्यायालय का संवैधानिक संस्था के निर्णय को
हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन जब माननीय न्यायालय सजा देती है तो आंदोलन करने वाले, और जब जमानत देती है तो ढोल बजाने वाले, ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोगों से पूछना चाहिए कि जिनको संविधान में विश्वास नहीं है और संविधान को लेकर के जनता को भरमाते थे, चुनाव में संविधान के नाम पर वोट प्राप्त करने का जो खेल खेले हैं, उन संविधान विरोधी मानसिकता से पूछिए कि जब माननीय न्यायालय का निर्णय होता है तो उसको स्वीकारने में इतनी तकलीफ क्यों होती है। जमानत भी वही देता है, सजा भी वही देती है, इसमें एनडीए गठबंधन की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन जनता को बरगलाने का खेल ये लोग खेलते हैं, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, समाज को लड़ाने वाले, देश को कमजोर करने वाले मानसिकता के लोगों को माननीय न्यायालय नजर रखती है। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार पर जमकर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ जिले के थानों और तहसीलदारों का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तभी मतदाताओं का असली सम्मान होगा। आपको यह भी बता दें कि मोती सिंह ने यह बयान तब दिया जब पट्टी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने ब्लॉक सभागार में मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। तब उस वक्त मोती सिंह ने यह बयान दिया, जिसके बाद विपक्ष में बैठी सपा ने इस बयान को लपक लिया और अखिलेश यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा के नेता भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल लिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। तो सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और सीतापुर में बीजेपी की हार को लेकर चर्चा की। इस दौरान पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने सीएम योगी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की जन समस्याओं से मुख्यमंत्री योगी को रूबरू करवाया और जल्द ही समाधान की मांग की। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया कि पूरी तैयारी के साथ बीजेपी विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी। भाजपा यूपी में अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर 10 की 10 सीटें जीतेगी। जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, भाजपा अपनी प्रक्रिया को पूरा करके प्रत्याशियों के नाम जनता के सामने रखेगी। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में कानून का अच्छा राज है, किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे वो छोटे हों या बड़े, सभी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई सरकार को करनी हो। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अनुसार अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रभारी के नाते जिम्मेवारी दी है और स्थानीय संगठन से बातचीत करके संगठनात्मक जो भी काम है, हमें अपनी बूथ समिति का, सभी सेक्टरों का, मंडलों का वेरिफिकेशन करके और पूरी तैयारी के साथ हम लोग विधानसभा उपचुनाव में जाएंगे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर 10 की 10 सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे। अब ये चुनाव आयोग को तय करना है कार्यक्रम तो उसका, लेकिन हमारी ओर से संगठनात्मक तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जैसे भी चुनाव आचार संहिता लगेगी या चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करेगा, हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरे करके जनता के बीच में जाएंगे।
प्रमुख अखिलेश यादव ने प्री बजट पर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह लिखा कि प्री बजट का दिखावा भी एक छलावा है, सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। साथ ही अखिलेश ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में अधिकतर मंत्रालय अब मन मंत्रालय बनकर रह गए हैं। तो यूपी में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने लोगों के लिए आफत लाकर रख दी है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरदोई के कहारकोला गांव के लोगों ने बाढ़ से परेशान होकर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे रास्ते से आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए सभी जनपदों के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जारी किया है। अगर आप साइबर ठगी के शिकार हुए हैं या आपके नाम और फोटो का सोशल मीडिया में दुरुपयोग करके कोई बदनाम या ब्लैकमेल कर रहा है, फिर कोई ई कॉमर्स कंपनी पैसे लेकर सामान डिलीवर नहीं कर रही है, तो आप अपने जिला के साइबर क्राइम थाने में लिखित या नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके शिकायत दर्ज कराएं। तो वहीं मेरठ थाने के परतापुर में पुलिस की गो तस्कर के साथ मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान गो तस्कर के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल गो तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। आपको यह बता दें कि गौ तस्कर क्षेत्र में गौकुशी की घटनाओं में लगातार शामिल रहा। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां जिले में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। चकिया कोतवाली क्षेत्र के लतीफ शाह बियर के राइट कर्मनाशा नहर में अधेड़ व्यक्ति का शव बहता हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मृतक की शिनाख्त कराने में जुट गई। लोगों की माने तो अधेड़ 3 दिन से लतीफ शाह बांध नहर के पास घूम रहा था, जो दिखने में अर्ध विक्षिप्त लग रहा था। तो कर्मनाशा लेफ्ट की नहर में अज्ञात शव मिला। इसके बाद सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो कर्मनाशा लेफ्ट नहर में अज्ञात शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच पड़ताल में जुट जाती है। तो सब्जियों के बढ़ते दाम से आम आदमी पार्टी की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। टमाटर समेत अन्य सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। थाली में से सब्जी ऐसा लग रहा है कि गायब ही हो गई। व्यापारियों का यह मानना है कि बारिश के चलते सब्जी की फसल बर्बाद हो चुकी है। इसी वजह से कीमतों में तेजी से उछाल आया है। पिछले कुछ दिनों में मौसम में आए बदलाव और निर्यात कम होने के कारण कई सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ गए। इंडिया वॉइस की टीम ने सब्जी बाजार पहुंचकर आम जनता से सब्जियों के बढ़ते हुए दाम पर उनकी राय पूछी।
देखिए ये रिपोर्ट। सब्जियों के दाम में जो है बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। और इस समय इंडिया वाइज की टीम जो है सब्जी बाजार में है, यहाँ पे आम जनताओं से भी राय ले रही है कि सब्जियों के दाम में जो है अचानक जो वृद्धि आई है। टमाटर जो है 100 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि इससे पहले जो है टमाटर 10 से 20 रुपए किलो बिकता था। आलू 25 रुपए किलो थी, आज 40 से 50 रुपए में बिक रही है। वही तुरई 10 रुपए किलो थी, आज तुरई जो है 40 से 50 रुपए किलो बिक रही है। मिर्चा जो है 10 रुपए में 250 ग्राम मिलता था, आज 20 रुपए मिल रहा है। तो ये माना जा रहा है कि सभी सब्जियों के दाम में जो है अचानक वृद्धि आई है, जिससे आम जनता पे काफी महंगाई का बोझ पड़ा है। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे सब्जियों के दाम में अचानक वृद्धि क्यों हुई? सब्जी तो बहुत महंगी हो गई है सर। सब्जी आज के 10-15 दिन पहले वो सब्जी का दाम, जैसे टमाटर है, आलू मतलब आलू भी है, कोई भी है, मतलब क्या रेट थी और आज क्या रेट? आज का रेट ये 100 रुपए किलो टमाटर है सर। 100 रुपए किलो टमाटर है, 60 रुपए किलो। इससे पहले तो 10-15 दिन पहले मतलब जो 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, बहुत अच्छा टमाटर अगर था तो 20 रुपए किलो है, और वो 10 रुपए किलो था। तरुई तो 60 रुपए किलो। इससे पहले क्या? इससे पहले वही 10-20 रुपए किलो थी अच्छी तरुई। तो महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बहुत ज्यादा आसमान छू रही है महंगाई। हम लोग जो छोटे आदमी है वो परेशान है। क्या वजह है जो अचानक जो है महंगाई आ गई? अरे क्या वजह है, ये बारिश के ये चलते समय से सब्जियां सब सारी जो है सब खराब हो चुकी है। बाहर से भी नई माल आ रहा है, जो किसान लोग, बड़े बड़े किसान लोग बाहर में जो है वो सब गाड़ियां सब रुकी पड़ी है, इसीलिए महंगाई बढ़ी है। क्या नाम पड़ता? हमारा नाम अशोक मौर्य। तो यहाँ पे जो अशोक मौर्य है, उनका साफ तौर पे कहना है कि 15 दिन से पूर्व जो थी सब्जियों के दाम में काफी कमी थी, लेकिन अचानक जो है वृद्धि हो गई है और सब्जियों के सभी दाम बढ़े हुए हैं, चाहे वो भिंडी हो, चाहे टमाटर हो, चाहे तुरई हो, चाहे आलू हो, सभी में वृद्धि बढ़ी है। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा वृद्धि है, ये बरसात नते बहुत ज्यादा वृद्धि है। आलू 40 रुपया है, मिर्चा 20 रुपया है, तो हर चीज की महंगाई हो गई। तो क्या करेंगे किसान लेवे के? तो आम जनता पैसा परेशान है, आम जनता तो बहुत ज्यादा परेशान है। आम जनता तो क्या करे, कहाँ से? इससे पहले भी महंगाई से परेशान थी, अब सब्जी भी महंगी हुई। सब्जी महंगी हुई, इससे ज्यादा पहले परेशान आवे भाई, अब हो जाता है ये तो खाना है तो लेने है। तो यहाँ पे जो लोग भी हैं, उनका ये भी यहाँ पे कहना है कि जो वृद्धि हुई है सब्जियों में भी महंगाई छा गई है। जहाँ पे लोग जो है 100 रुपए में झोला भर जाता था, वही अब 500 रुपए में भी उनका झोला नहीं भरता है। तो इस साफ तौर पे माना जा रहा है कि महंगाई जो है इस समय चरम सीमा पे है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं। सब्जियों के दाम में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। पहले टमाटर जो है 20 रुपए 30 रुपए किलो मिलता था, आज 100 रुपए किलो मिल रहा है। तोरी का रेट आप अगर ले लीजिए तो पुराना रेट 15 से 20 रुपए था, आज 40 रुपए किलो मिल रहा है। हरा मिर्चा 10 रुपए पाव था, जो आज 20 रुपए मिल रहा है। ऐसा सारी हरी सब्जियों का रेट बढ़ चुका है। भिंडी का भी रेट जो है वो काफी बढ़ चुका है। पहले 20 रुपए में था, अब जो है भिंडी 45 रुपए और 50 रुपए में मिल रही है। इस तरह से हरी सब्जियों का रेट बहुत सारा बढ़ गया है। तो महंगाई कमर तोड़ रही है। महंगाई कमर क्या, बहुत ज्यादा कमर तोड़ रही है। किसान के पॉकेट पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। गरीब आदमी हरी सब्जी खाने में असमर्थ है। क्या नाम पड़ता? मेरा नाम अमर बहादुर सिंह है। तो उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे दादा सब्जियों में कितनी महंगाई है? बहुत बड़ी महंगाई है भैया। कद्दू 40 रुपए किलो है, तरोई 40 रुपए किलो है, प्याज 40 रुपए किलो है। अचानक कितने दिनों से वृद्धि आ गई? ये अचानक लगभग 15-20 दिन से। यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यहाँ पे कहना है कि जो सब्जियों के दाम है अचानक 15 दिन बढ़ गए हैं, और वजह ये मानी जा रही है कि जो बारिश का मौसम चल रहा है उसकी वजह से जो है सब्जियों के दाम में 2 गुना वृद्धि हो गई है। आम जनता की कमर टूटती हुई नजर आ रही। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, मतलब गरीब की थाली में सब्जी जिस हिसाब से दाम उसके बढ़ रहे हैं, थाली में सब्जी दिखाई नहीं देगी। ये दाम देखिए, टमाटर 30 से 100 रुपए किलो, करेला 30 से 60। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस पर अखिलेश का पलटवार आया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है,
उन्होंने लिखा कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस मनाया जाना चाहिए। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। मणिपुर, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर बीजेपी से कई सवाल पूछे। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा था, जिससे आज संविधान हत्या दिवस करार दिया गया। गजट गृह मंत्रालय की तरफ से पास किया गया, यानी कि 25 जून 1975 जिस दिन इस देश में आपातकाल लगा था, अब उस दिन को संविधान हत्या दिवस पर ये अब सियासत तेज हो गई है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये बीजेपी पर हमला बोला है। इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, जिस तरह से 25 जून 1975 मतलब जिस दिन आपातकाल लगा था, गृह मंत्रालय की तरफ से गजट पास किया गया और ये कहा गया कि भैया अब ये एक तरीके से आपातकाल लगाने के बाद संविधान हत्या दिवस पर यह मनाया जाएगा। अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव की तरफ से साफ तौर पर बीजेपी को लेकर चौतरफा हमला कह सकते हैं किया गया है और बाकायदा एक एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्होंने ट्वीट किया है और 30 जनवरी को उन्होंने बापू हत्या दिवस के रूप में मनाने के लिए जो है वो आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने जो बीजेपी सरकार कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको उन्होंने उठाया है, चाहे उसमें वो मणिपुर का मामला हो, चाहे वो जो सैनिक भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है जिसमें कहीं ना कहीं विपक्ष लंबे समय से जो है वो अग्निवीरों को के मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी को घेरता रहा, चाहे वो मसले को लेकर हो या अन्य कई सारे मसले हों, सभी मसलों को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया है और बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। और कहीं ना कहीं जिस जो मुद्दे उठाए गए हैं उन सभी मुद्दों के जरिए लगातार अगर आप देखें तो विपक्ष की तरफ से जो है इस तरीके के सवाल जो है वो उठाए जाते रहे हैं। और इसमें जो सबसे अहम है उसमें उन्होंने बीजेपी से पूछा है कि बीजेपी बताए कि लखीमपुर में जो किसान की जो हत्या हुई थी क्या उसका कौन सा दिवस होगा, कानपुर देहात में माँ बेटी हत्या दिवस, 3 जो कृषि कानून लाए गए थे जिसपे बड़ा एक प्रदर्शन जो है देश के अंदर देखने को मिला और उसके बाद किसानों का जिस तरीके से विरोध हुआ उसके बाद सरकार ने बैकफुट पर आकर उन तीनों कानूनों को पीछे लिया था। तो 3 वो काले कृषि कानून दिवस जो है उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। नोटबंदी, जीएसटी को लेकर, यस भारती जो पुरस्कार बंद किया गया है उसको लेकर हो, यानी कि सभी मुद्दों को लेकर एक साथ आज अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करके जो है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। और प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।